Now come to our next type of biofertilizer. Come to our next type of biofertilizer called as fungal biofertilizer. आपने नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर पढ़ लिए, सिम्बायोटिक एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पढ़ लिए, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर डिस्कस कर लिए। आज अपनी बारी है नेक्स्ट बायोफर्टिलाइजर के ऊपर, कॉल्ड एज फंगल बायोफर्टिलाइजर, ऑल्सो कॉल्ड एज माइकोराइजा। ऑल्सो इस फिनोमिना को और क्या नाम दिया गया है? माइकोराइजा। इट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड फ्रैंक। It is first studied by a scientist called Frank in 1885. According to Frank, this fertilizer or this biofertilizer is best for those plants which want more water supply and which want more minerals and salts. ऐसे फर्टिलाइजर जिनको ऐसे बायोफर्टिलाइजर वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल है जो प्लांट को ज्यादा अपटेक चाहिए वाटर का, मिनरल्स का और डिफरेंट सॉल्ट्स का, और अवेलेबिलिटी जो है सॉइल में बहुत कम है। ऐसे फर्टिलाइजर को बोला गया है फंगल बायोफर्टिलाइजर, और यू मे कॉल्ड इट एज माइकोराइजा। व्हेन यू ऑब्जर्व दिस वर्ड माइकोराइजा, टू wordings are there. Study of fungi is called as mycology. Study of fungi is called as mycology. And study of roots of higher plant, study of roots of higher plant, study of roots of higher plants is described as rhiza. इसका मतलब ये एक एसोसिएशन है। किसके बीच में एसोसिएशन है? कुछ सीड बेयरिंग प्लांट की रूट्स में या रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में, उसके साथ में फंगस ग्रो होगा, फंगस का डेवलपमेंट होगा। तो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जो रूट्स ऑफ सीड बियरिंग प्लांट और रूट्स ऑफ हायर प्लांट अलोंग विथ फंगस इज कॉल्ड एज माइकोराइजा। उस समय उस टर्म को क्या बोला जाएगा? माइकोराइजा। तो हियर व्हेन यू ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ सम हायर प्लांट, दे absorb water mineral from soil, but plant need much quantity of water mineral. At that time the roots can't absorb that quantity of water mineral. That's why special grow of fungal mycelium takes place. इसी ऐसे समय पर उस रूट्स के ऊपर में एक स्पेशल फंगल माइसेलियम जो है ग्रो होता है, फंगल थ्रेड जो है ग्रो होता है, और उस फंगल थ्रेड को बोला जाता है माइसेलियम, विच आर अरेंज इन ग्रुप, जो कहां पे अरेंज की हुई है? ग्रुप में है, बंच में है। एट द टाइम वी कॉल इट हाइफी, उस समय इसको क्या बोला जाएगा? हाइफी। तो जंक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड लाइक फंगल माइसेलियम on the surface of roots so that plant absorb more water, mineral as well as nutrient. That mycorrhiza is described as a fungal mycorrhiza. Now these fungal mycorrhizas are of two major types. ये जो fungal mycorrhiza है ये दो major types में distinguish हुए हैं. There are two major types of fungal mycorrhiza. One is described as ectomycorrhiza. One is described as ectomycorrhiza and one is described as endomycorrhiza. How many types of mycorrhiza are there? Two types of mycorrhiza are there. One is called as ectomycorrhiza and one is described as endomycorrhiza. Ectomycorrhiza is also called as ectotropic mycorrhiza. Similarly, endomycorrhiza is also called as endotropic mycorrhiza. Now what do you mean by these two biological words? इसके जो दो टाइप्स हैं, ये दो टाइप्स का मीनिंग क्या होता है? That we want to study. Now first of all, come to ectotropic mycorrhiza. Suppose these are the roots of some plants, and here the roots which start growing is a normal taproot system which become underground and start growing by developing a taproot system, and from this primary root secondary root starts growing. आप देखिए यहाँ पर प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट्स है which starts growing and starts absorbing more quantity of water mineral. But these roots can't absorb much quantity of water mineral as the plant need. प्लांट को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना क्वांटिटी का वाटर मिनरल जो है ये रूट जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। Now when you observe these roots, here
A normal taproot starts growing, having primary roots which grow deep down into soil. Then secondary root starts growing on its outer surface, and from secondary root a tertiary root starts growing. So this is a normal taproot system. Now when you observe a ectotropic mycorrhiza, in this ectotropic mycorrhiza there is a covering on this root surface. इस root की surface के ऊपर में covering बन जाती है, thread like white color का fungal growth होता है. उस white thread like fungals की growth जो है it starts developing on outer surface, so that it forms a mantle, जिसके थ्रू इसने क्या कर लिया, एक कवरिंग बना लिया है, एक शीट बना लिया है. आउटर एक्सटर्नल शीट जो है इसने डेवलप कर लिया है. तो जो एक्सटर्नल शीट डेवलप हुई है, ठीक है, एक्सटर्नल शीट जो डेवलप हुई है, यू कॉल इट मैंथल. दिस ग्रोथ ऑफ मैंथल इज डन बाय ए फंगस. ये ग्रोथ जो हुई है काई की हुई है, फंगस की ग्रोथ हुई है, जिसकी बदौलत अब जो एक्सटर्नल कवरिंग फॉर्म हुई है ये प्लांट को हेल्प करेगा, सो दैट प्लांट टेक मोर न्यूट्रिएंट, मोर वाटर फ्रॉम होल सॉइल सरफेस. जितना भी एरिया एक्सपांड अप किया हुआ है, जितनी भी जमीन अवेलेबल है, वहां से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है प्लांट क्या करेगा, ज्यादा करेगा. और इस मेथड के कारण फंगल की ग्रोथ कहां हुई है, रूट की सरफेस पे हुई है. रूट की सरफेस के ऊपर ग्रो होने के कारण एब्जॉर्प्टिव सरफेस जो है बढ़ गया है. इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्टिव सरफेस, इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्टिव सरफेस, ठीक है, ऑफ एरिया ऑफ रूट्स, जिसके थ्रू रूट जो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर रही थी, फंगल की ग्रोथ होने के कारण अब एब्जॉर्प्टिव सरफेस जो है काफी बढ़ गया है, सो दैट इट इंक्रीजेस और इट एक्सीलरेट्स, ठीक है, सो दैट इट एक्सीलरेट्स द अपटेक ऑफ वाटर, इट एक्सीलरेट्स द अपटेक ऑफ वाटर. तो ये दो स्पेशल पॉइंट्स हो गए, इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट्स. इट एक्सीलरेट द अपटेक ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. जो क्वांटिटी में प्लांट को वाटर मिनरल मिलना चाहिए, वो ज्यादा क्वांटिटी का वाटर मिनरल जो है प्लांट क्या करेगा, अब एब्जॉर्ब करेगा एंड ग्रो लग्जरियसली, ठीक है, सो दैट द ग्रोथ ऑफ प्लांट इंक्रीजेस एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द यील्ड. प्लांट की ग्रोथ तो बढ़ी रही है, लेकिन अब प्लांट जो है ऐसे समय पर यील्ड भी बढ़ाएगा, डेवलपमेंट भी ज्यादा करवाएगा, एंड ऑन एन एवरेज 2 to 3 times, 2 to 3 times, is it clear? On an average 2 to 3 times plant take more nutrients, generally nitrogen, phosphorus, calcium, is it clear? तो इसका परसेंटेज जो है प्लांट क्या करेगा, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, इंक्लूडिंग पोटेशियम ऑल्सो. तो 2 to 3 टाइम जो है प्लांट ज्यादा न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब करेगा. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. नाउ वंस दिस, व्हाई दिस फंगस विल ग्रो ऑन इट्स सरफेस. फंगस की ग्रोथ जो है सरफेस पे क्यों ही है, बिकॉज दिस फंगस सिक्रीट्स ए एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस. क्योंकि फंगस क्या सिक्रीट करता है, एक एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस सिक्रीट करता है. एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस जो है फंगस ने सिक्रीट किया है. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फंगस इज इट सिक्रीट्स ए एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस, ठीक है. व्हाट इज द रोल ऑफ दिस एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस? द रोल ऑफ एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस इज टू प्रोटेक्ट कंप्लीट प्लांट बॉडी. पूरे प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इंक्लूडिंग यंग रूट्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अटैक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन और पेस्ट. अलग अलग टाइप के पैथोजन और पेस्ट जो प्लांट को अटैक करते हैं, रूट की यंग रूट्स को जो अटैक करते थे, अब एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी आने के कारण प्लांट जो है फुल्ली प्रोटेक्टेड हो गया है. So these are the characteristic feature of ectomycorrhiza, or you may call it as ectotropic mycorrhiza. Here, the growth of fungus starts developing from externally, so that there is formation of a mantle, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल शीथ, एक्सटर्नल कवर जो है यहाँ पर रूट्स का डेवलप हो गया है, so that plant is benefited and is best observed in plant like
pine. It is best observed in plant like pine, including eucalyptus, जिसको नीलगिरी का प्लांट बोलते हैं, उसमें ये बेस्ट आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा. सो दैट द हाइट ऑफ प्लांट गेट इंडेफिनेट, इसके थ्रू प्लांट की हाइट यहां पर क्या हो जाएगी, इंडेफिनेट हो जाती है. Now come to second one, called as endomycorrhiza. Again one more name is used, called as endotropic mycorrhiza. एक और नाम अपन यहाँ यूज कर सकते हैं, called as endotropic mycorrhiza. Endotropic mycorrhiza. This is second name. Now as per name indicates, endotropic mycorrhiza क्या होना चाहिए यहाँ पर? एंडोट्रोपिक माइक्रोराइजा एक ऐसा माइक्रोराइजा जिसमें जो रूट्स थी प्लांट की, रूट्स, रूट की आउटर सरफेस में जो फंगस की ग्रोथ हुई थी, उस ग्रोथ को अपन ने क्या बोले थे, एक्टोट्रोपिक माइक्रोराइजा. लेकिन यहां पर जो रूट सेल्स है, एनाटॉमिकल फीचर्स अगर देखा जाए तो these are the root cells, or you may call some cortical cells present in roots. These are the root cells. Inside these root cells, some fungal mycelium will grow. अब इस रूट सेल के अंदर में फंगल माइसेलियम ग्रो हो रहा है. इंटरसेलुलर भी ग्रो होता है और इंट्रासेलुलर भी ग्रो होता है. दो रूट सेल्स के बीच में भी ग्रो होगा, ठीक है, और रूट सेल्स के इंटरनली भी ग्रो होगा. सो दैट वी कॉल इट एज द ग्रोथ ऑफ फंगल माइसेलियम इज इन इंट्रासेलुलर एज वेल एज इंटरसेलुलर मैनर. Just take for example, suppose these are the root cells. When you study the anatomical features of this root, these are the root cells. Here the fungal mycelium start growing. These are all fungal mycelium, which are thread-like body. It start growing inside the root as well as it start growing in the intercellular spaces of root. रूट का जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसके बीच में भी वो ग्रो हो गया है. एंड वंस दे स्टार्ट ग्रोइंग इंटरनली दे फॉर्म ए बल्ब लाइक प्रोजेक्शन. ए स्फेरिकल स्वेलिंग विल फॉर्म. दिस स्फेरिकल स्वेलिंग इज कॉल्ड एज वेसिकल्स. इस स्फेरिकल स्वेलिंग को क्या बोला गया है, वेसिकल्स. एंड दिस वेसिकल्स दे डिवाइड एंड रिडिवाइड इनटू ए बंच लाइक स्ट्रक्चर. अभी वेसिकल जो है इंटरनली डिवाइड और रिडिवाइड हुआ और वो बंच लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया. नाउ दिस ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर इज नाउ कॉल्ड एज VAM. ये जो बंच लाइक वेसिकल्स जो डेवलप हो गए इसको क्या बोला जाता है, VAM. फुल फॉर्म इज वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइक्रोराइजा. इसका फुल फॉर्म क्या है, वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइक्रोराइजा. वेसिकुलर अर्बेस्कुलर mycorrhiza. Is it clear? So this bunch-like structure is called as vesicular arbuscular mycorrhiza, or you may call VAM. अब what is the duty of this VAM? दोनों में डिफरेंस देख रहे हो आप. यहाँ पर फंगस की ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नली हुई है और यहाँ पर फंगल की ग्रोथ जो है इंटरनल हुई है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. यहाँ पर बंच लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो गया है. रूट हेयर्स, रूट हेयर्स के अंदर में फंगल की जो ग्रोथ है वो बंच लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म हुआ है, जबकि यहां पर सिर्फ एक शीट बनाया था फंगस ने, एक सिर्फ एक्सटर्नल कवर बनाया था. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व दिस वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइक्रोराइजा, और वी कॉल प्लांट विथ वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइक्रोराइजा ग्रो लग्जरियंटली. जिस प्लांट में इसकी डेवलपमेंट होगा उस प्लांट की ग्रोथ जो है लग्जरियस होगी. Particularly in less irrigated land, it start growing in less irrigated land. जो जमीन में पानी बिल्कुल नहीं है ऐसी जमीन के ऊपर में भी वो प्लांट जो है सक्सेसफुली ग्रो होगा. इवन जो प्लांट जिस सॉइल सरफेस पे ग्रो हो रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी लेस थी, लेकिन वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइक्रोराइजा के द्वारा उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. Less productive field convert into more productive field. This is also one of the characteristic feature. Less productive field जो थी
वो अब कन्वर्ट हो जाएगा मोर प्रोडक्टिव फील्ड में. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट पॉइंट ऑफ एंडोट्रॉपिक माइक्रोराइजा. हियर ऑल्सो द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इंक्रीजेस. यहां पर भी प्लांट जो है एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ा देगा. उसमें प्लांट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, पोटेशियम ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा. इज इट क्लियर? आयरन ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा. हियर द प्लांट एब्जॉर्ब मोर quantity of nutrient in form of potassium, in form of iron, in form of calcium as well as in form of phosphate. इसका absorption capacity जो है प्लांट बढ़ा देगा. So that depend on requirement of growth and development of plant take more nutrient from soil, from nature, so that complete plant is benefited. जिससे पूरी तरीके से प्लांट जो है क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा. इसका मतलब एंडोट्रॉपिक माइक्रोराइजा एफॉरेस्टेशन जहां पर हुआ है वहां अगर ये प्लांट में ग्रो हो जाए तो कंप्लीट एरिया बिकम फॉरेस्टेड. कंप्लीट जंगल जो है डेवलप किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंडोट्रॉपिक माइक्रोराइजा. तो दिस आर लार्ज नंबर ऑफ एडवांटेजेस. दैट्स व्हाई नाउअडेज द क्वालिटी ऑफ फंगल बायोफर्टिलाइजर इज मोर बेनिफिटेड फॉर फार्मर as well as for environment and nature also. So here we have completed this topic. Our last topic now is benefits of biofertilizer, जो अपन next period में discuss करेंगे.